بولاچی پورہ سورا سری نگر کے قریب ملیٹنٹوں نے ایک پولیس اہلکار پر اندھا دھند گولیاں چلائیں۔ اس حملے میں عامر حسین لون نامی پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے تھے۔ وہ بعد میں اسپتال میں دم توڑ بیٹھے۔ عامر کو زخمی حالت میں فوری طور پر سکمز منتقل کیا گیا تھا، مگر وہ بعد میں علاج کے دوران شہید ہو گئے۔ اس حملے کے بعد پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کارروائی انجام دی۔ شہید جوان کا تعلق ضلع کپواڑہ سے بتایا گیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے شہید پولیس اہلکار عامر حسین لون کو خراج عقیدت پیش کیا، جو آج سورا میں ملیٹنٹوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہو گئے تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائن سری نگر میں خراج عقیدت کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی جی پی جموں کشمیر دلباغ سنگھ اور دیگر افسران نے شہید پولیس اہلکار کو خراج پیش کیا۔ آئی جی پی نے بتایا کہ ایک ملیٹنٹ بھی زخمی ہوا ہے۔ پولیس نگر کو خبر تھا کہ 3 ٹیررسٹ ایک گاڑی میں لال رنگ کی گاڑی گھوم رہا ہے۔ پولیس کے ایک کوورٹ ٹیم اس کے پیچھے کر رہی تھی۔ ایک بریف انکاؤنٹر ہوا جس میں ٹیررسٹ کو بھی گولی لگا، اس میں ہمارے ایک جوان کرٹیکل انجرڈ ہو گئے۔ بعد میں ان کو ہاسپٹل لے گئے، بعد میں وہ مارٹیرڈم کو پراپت کیے ہیں۔ ہم لوگ کا افسوس ہے، لیکن اس گروپ کو ہم لوگ بہت جلدی نیوٹرلائز کر لیں گے۔ یہ لشکر طیبہ کا گروپ تھا جس میں کہ مہران کے بعد جو باسط کمانڈر بنا ہے، باسط تھا، اس میں ریحان تھا، ایک اور ملٹن تھا جس کا نام بتائیں گے۔ ہم لوگ کی آپریشن بہت ہو رہا ہے، جیسے کہ دیکھیں کہ اس مہینہ میں کافی ہم لوگ قریب 11 ہارڈ کور ٹیررسٹ کو نیوٹرلائز کیے ہیں، لگ بھگ 12-13 ہارڈ کور ٹیررسٹ کو ہم لوگ اریسٹ بھی کیے ہیں۔ ہمارے بھی آپریشن جاری ہے اور اس گروپ کو جلدی نیوٹرلائز کریں گے ہم لوگ۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کشمیر میں یہ تیسرا واقعہ، 2 سویلین کل مارے گئے تھے، لیکن آج کے آپریشن کے بارے میں پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ پولیس کا ہی آپریشن تھا، کوورٹ آپریشن۔ پولیس کو دراصل یہ خبر ملی تھی کہ باسط جو ایل ای ٹی کا کمانڈر ہے، مہران وانی کے مارے جانے کے بعد وہ یہاں کمانڈر بنا تھا، اس کا تعلق اصلی جنوبی کشمیر کے فیصل علاقے سے ہے، اور وہاں اس کی موجودگی کی خبر پولیس کو ملی تھی، جس کے بعد ایک آپریشن شروع کیا گیا۔ سیویز میں پولیس وہاں گئی اور وہاں ان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور فائرنگ میں یہ جو سینئر گریڈ کانسٹیبل ہے وہ دیش کے کام آیا۔ اور ساتھ میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہی جو دستہ ہے، یہ 3 ملیٹنٹ وہاں پہ موجود تھے، ان کی موجودگی کی خبر تھی، اور یہی جو کلنگز ہو رہی ہیں اس میں ان کی یہ شامل ہے، ان کی شمولیت ہے، اور پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جلدی ہی ان کو نیوٹرلائز کیا جائے گا۔ فی الحال یہ جو ملیٹنٹوں کا یہ جو دستہ ہے، یہ پولیس کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ جہانگیر عزیز کے ساتھ شبیر احمد، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ سورا سری نگر میں شہید ہوئے عامر حسین لون کا تعلق کپواڑہ سے ہی۔ ان کی موت کی خبر کے ساتھ ہی ان کے آبائی علاقے میں غم و ماتم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ خاصی تعداد میں لوگ ان کے گھر میں جمع ہو گئے ہیں۔ یہاں ہر آنکھ نم ہے۔ عامر کی 3 بیٹیاں ہیں۔ عامر کی موت سے پورے علاقے میں ماتم بچھ گیا ہے۔ وادی کشمیر میں ملیٹنٹوں کی جانب سے عوامی نمائندوں، غیر مقامی افراد اور عام شہریوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ شام ایک اور عام شہری اور ایک غیر مقامی شخص پر گولیاں چلائی گئی تھیں۔ ودپورہ بڑگام میں ملیٹنٹوں نے ایک عام شہری پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ مارے گئے شہری کی شناخت تجمل محی الدین کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تجمل نماز کے بعد مارکیٹ نکلا تھا۔ اس دوران 4 ملیٹنٹوں نے گولیاں چلائی۔ زخمی حالت میں تجمل کو اسپتال منتقل کیا گیا، مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ بیٹھا۔ تجمل کی لاش کو آج آخری رسومات کے لیے ان کے آبائی گاؤں پہنچایا گیا۔ پورے علاقے میں غم و ماتم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تجمل کی 2 بیٹیاں ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق ان یتیم لڑکیوں کا اب کوئی سہارا نہیں ہے۔ انہوں نے سرکار سے اپیل کی کہ ان کی طرف توجہ دی جائے۔ تجمل پر حملے کے فوری بعد پورے علاقے کو سیکیورٹی فورسز نے محاصرے میں لے لیا تھا۔ آج دن بھر بھی علاقے میں وقفے سے سیکیورٹی فورسز کی موجودگی دیکھنے کو ملی۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور تفتیش شروع کی گئی ہے۔ یہ 4 گورمنٹ کرن أکس مالس ماجہ بچہ 4 أمس یہ فکر آسان یتھے پٲٹھۍ اکھ گورمنٹ ذمہ دار یمن ہُنٛد یہ یمن ہُنٛد ذمہ دار یمن بچن ہُنٛد یم پے ونکیٚنس 3 ماجہِ کورِ پٮ۪ٹھ
अच्छा बस पान सठ पियोमुत बह क्या कर कोरन कुछ कर सुबह त्रे माज कोर वनकस पेवान बजे करीबन उस ये द्रामुत नबर कुन इन बचन खतर क्या अन्य तो अत पता यह कम कोर क्या कोर वह सन अक रिक्वेस्ट अमिश थम बच्चे इन खतर गोस यह LG रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंटस तक करान रिक्वेस्ट कि इन बच्चन दोन खतर गोस अमिस कह सहारा रोजन क्या बच्चे गई यतीम मतलब रहम सहम इन कर इंसाफ इन कर क्या सहार बिचार गरीब वारिया गरीब तो इन सस कोर तो यमिस यह कूर अमिस बिचारस आई वापस यह कूर। LG मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आइंदा 6 महीनों में 70,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी, जबकि 6 से 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर में खलीजी ममालिक के सरमायाकारों के एक इजलास के मौके पर यह बात कही। सिन्हा ने कहा कि 27,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीज़ को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नई सनती पॉलिसी भी बनाई गई है। LG के मुताबिक इजलास में उन शोबों की निशानदेही की गई है जहां पर सरमाया मशगूल किया जाएगा। LG ने कहा कि सरमायाकारों के साथ अच्छी बातचीत हुई है और इस अमल को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों के CEOs को भरोसा दिलाया कि कम से कम वक्त में उनके मसाइल का इजाला किया जाएगा। सरमायाकारों ने भी अच्छे रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बस ये चर्चा हुई है, बहुत सारे मुद्दे और एरियाज हम लोगों ने स्पेसिफाई किए हैं। इनके जो कंसर्न्स हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है और हमने इनको भरोसा दिया है कि सबका रिड्रेसल मिनिमम टाइम पीरियड में हम करेंगे। खास तौर से हॉस्पिटल एंड मेडिकल एजुकेशन, रियल इस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेजेज एंड कोल्ड चेन्स, एजुकेशन, ये कई महत्वपूर्ण लोग, बड़ी कंपनियों के CEOs हमारे बीच हैं। अच्छी बातचीत हुई है। अब हम इसको आगे जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। Main purpose of why we are visiting here, I think there is a big opportunity to invest from our whole team, either if they are from GCC countries or United Arab Emirates or our Indian friends who is living with us. And I want to say thank you for Mr. Balo. Mr. Balo, you are saying that Emirates support you, but I will tell you something that we are not forgetting also the Indian who support and build United Arab Emirates with us. So we want to thank you the Indian people, all of them who built with us the United Arab Emirates. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि 90 की दहाई में कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन की सच्चाई का पता लगाना है तो मरकजी हुकूमत एक कमीशन तश्कील दे, इससे हकीकत अयां हो जाएगी। बीजेपी के इल्जामात पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इल्जामात लगते रहते हैं। I think they should appoint a commission, and that will tell them who is responsible. Sir, but there are documents that show, sir, that you were at that point of time. See, this is the document. Well, that's what I tell you. Listen, appoint a commission and put it before them. Sir, I have told you. If you want to know the truth, they should appoint a commission. आरोप लगते रहते हैं। वो कह रहे कि आपके आरोप लगते रहे। वो कह रहे कि आपके CM रहते ही शुरू हो गया था। बिल्कुल वो कहते रहे। तो आपको लगता है कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी? उसकी बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? अपॉइंट कीजिए कमीशन। आप इसके लिए क्या सर कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी पूरे मुल्क में लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करने का काम कर रही है। कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म पर तबसरा करते हुए मुफ्ती ने कहा कि ये लोग हमें क्या फिल्म दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ देखा है और खोया है। महबूबा ने कहा कि कांग्रेस ने भी गुज़िश्ता 50 बरसों में काफ़ी गलतियां की होंगी, मगर उन्होंने मुल्क को संभाल कर रखा था। मुफ्ती ने कहा कि वो अमन और भाईचारा चाहते हैं। उन्होंने सांबा में एक इजलास से खिताब किया। विजयपुरा में पार्टी के इस इजलास से कई लीडरान ने खिताब किया। हमने बीजेपी से सरकार बनाई, हमने उनसे लिख के लिया कि हम 370 को नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू।
कि हम 370 को नहीं छेड़ेंगे, हम आईन को नहीं छेड़ेंगे, हम और रास्ते छत्तीसगढ़ का रास्ता खोलेंगे, ये हमने बीजेपी से लिख के लिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे यहाँ की जम्मू की बासमती उधर जाए और वहाँ से पैसा आए, जैसे कश्मीर में उड़ी से जाता था, जैसे यहाँ से पुंछ रावलाकोट से जाता था। अरे हमने बहुत बुरे वक्त देखे हैं, मगर हम चाहते हैं ये खून खराबा बंद हो, हमेशा के लिए बंद हो, हम चैन से रहे, आराम से रहे। मगर ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहें, जिन्ना जिन्ना करते रहें। अब तो जिन्ना को छोड़ के अब तो बाबर को याद करते हैं, अब तो औरंगजेब को याद करते हैं। अरे औरंगजेब आज से 500 साल पहले था, बाबर 800 साल पहले था। क्या आपके पास लोगों को देने के लिए सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है? हम पूरे मुल्क को बिजली देते हैं, मगर हमारे खेतों में पानी चढ़ाने के लिए बिजली नहीं होती, हमारे कनालों में पानी नहीं होता। कि एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे, मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा, हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। सगम अनंतनाग से डीडीसी मेंबर मोहम्मद सलीम पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। कोकरनाग में मुनक्किदा एक तकरीब में पीसी के सदर सजाद गनीलोन, मंसूर सहरवर्दी और दीगर अराकीन ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि सलीम परे नई नस्ल के लीडर हैं जो मुस्तकबिल में सियासत में अहम किरदार अदा करेंगे। इस बात पर जोर देते हुए कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस कुर्बानियों की विरासत रखने वाली जमात है। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों को बावकार तरीके से ज़िंदगी गुजारने की जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त की सख्त आजमाइशों से घबराना नहीं है, ये दूर अंदेशी, साबिक कदमी और गैर यकीनी सूरत हाल से निकालने के लिए पुरअज़्म रहने का वक्त है। बदले बुथ गोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस करा पक्कोर की कला पीडीपी आज बीजेपी वैल करा जुल्म सुई जालिम बदल गया जुल्म वही रह गया आज कति ठार कर कि लोग मीडिया वैल बोय ये सवाल प्रसन में यह पाई बोय करने की वजन ये हुक्मरान का ठारा कत कर पुछ तो शाम यूपीए लोग शाम PSA लोग ये ऐसा मैंने खौफ कहीं नहीं देखा। लोगों के साथ भी यही किया हुआ, मगर इंशाअल्लाह ये सहलाब के रोज तो दोहे किए ये गंदा आपके नहीं रहता। आज खोजकोट खोजबाय सवीन महबूबा जी खोजकोट उमर अब्दुल्ला कटे खेवान पत रातुक ताम दपाम फारूक अब्दुल्ला सबन हसा कर क्रिकेट स्कैमस में चूर वन PDP वो कटे दपान चूरी गम मगर दपान जिद्दोजहद कर। मुझे बताओ जिद्दोजहद मांगती है खून, जिद्दोजहद मांगती है लाशें, जिद्दोजहद मांगती है जेल। ये लाश हमसाय सिंदिस बच्चस पे नजर किन पन्निस बच्चस पे। मेरे अपने बच्चों का ख्वाब है कि वो बाहर पड़े। मैं किसी और के बच्चे को नहीं बोलूंगा कि वो पत्थर उठाए या जिद्दोजहद करे। जब मेरा बच्चा करेगा तो हमसाया का बच्चा भी करेगा। उमन छु इक्तदार रोमुत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमला छु उमन का चीज रोमुत तहत सतत छु तो रोमुत में रोमुत उमन छु रोमुत के। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सईद बशारत बुखारी ने कहा कि माजी में सियासी लीडरान अपने निजी मफादात और वोट के लिए झूठ बोलकर अवाम को धोखा देते रहे हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है क्योंकि अवाम सब कुछ जानते हैं और बहुत बाशऊर हैं। बुखारी बारामुल्ला के क्रीरी में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के बाद न्यूज़ 18 से गुफ्तगू कर रहे थे। अब्दुल गनी वकील, खुर्शीद आलम, राजा एजाज अली ने भी खिताब किया। बशारत ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही वाहिद पार्टी है जो साफ सुथरी और अवाम दोस्त मुस्तकबिल के मंसूबे रखती है। बुखारी ने कहा कि लोग आगे मुश्किल वक्त देख सकते हैं, लेकिन एक सही पार्टी और एक अच्छे लीडर का इंतखाब वक्त की ज़रूरत है। पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। मुझे लगता है कि आज की तारीख में वैसे सच बोलना हमेशा चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीनी सतह पे हैं गलत बताई जाती हैं, झूठ बताया जाता है। और मुझे लगता है कि
5 अगस्त के बाद भी अगर झूठ बोला जाए, हकीकत पे मबनी बात न की जाए या अपने सियासी फायदे के लिए लोगों को बहलाया फुसलाया जाए, बहुत गुनाह है। इलेक्शन तो जब भी होगा तो हम तैयार ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले ये डिलिमिटेशन का जो फाइनल हो जाए, कौन सा इलाका कहाँ हो जाए, उसका थोड़ा हम वेट कर रहे हैं। मुझे भी एक चैनल ने पूछा था कि आप पीर पंचाल और चनाब वैली जाते नहीं हैं। मैंने उनको कहा, उन्होंने हमेशा कश्मीरी लीडरशिप और पार्टीज का साथ दिया, लेकिन मिला उनको कुछ नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि जब हम जाएंगे वहाँ पे हम क्या बोले उनके साथ भी धोखा आगे नहीं होना चाहिए। इसीलिए बड़े मोहतात तरीके से और बड़े एहतियात से कदम बढ़ा रहे हैं और उसी की आज एक काविश थी यहाँ पे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।